Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, we were discussing unit number 7. Okay, and in that session, we have discussed about the Olympics game and about the various games that are being played in the Olympics. ओके वेयर द वेरियस ओलंपिक्स गेम वर हेल्ड, कहाँ कहाँ अलग अलग ओलंपिक गेम्स हुई थी, ये हमने अपने पिछले जो हमारा सेशन था उसमें दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सम अदर टॉपिक्स of the same unit, that is unit number 7, that is sports and their places of origin. So this is the next topic that is given in your book, that is sports and their places of origin, given at page number 50. So class, kindly open your books at page number 50, that is sports and their places of origin. So I am just going to write down the topic here, that is sports and their places, sports and their places of origin. So what is the meaning of this sports and their places of origin? So the meaning of this topic is, देखिए आपको पता है बहुत सारे sports हैं, बहुत सारी games हैं. Okay, so there are various sports, okay, all around the world that are being played. But have you ever thought कि ये जो sports हैं, ये शुरू कब हुए, किसने शुरू किए, कहाँ से origin हुआ, कौन सी country में हुआ? So have you ever thought about it? So this is what we are going to discuss today. So the various sports that you are playing in your daily life, like cricket, football, badminton, basketball, rugby. So there are various sports that are being played all around the world. तो दुनिया में बहुत सारे sports है बेटा जो खेले जाते हैं. ओके सो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो स्पोर्ट्स हैं, जो कौन कौन सी कंट्री का ओरिजिन है या कहाँ से उसका आइडिया आया. सो ओके तो देखिए कोई भी चीज़ है तो जनरली बात है जब कहीं ना कहीं से वो उसकी शुरुआत हुई है, चाहे वो कोई डिस्कवरी हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, एनीथिंग. So everything has its own. So जैसे right now I'm wearing this दुपट्टा, तो ये दुपट्टा कॉटन से बना हुआ है. ओके सो दिस दुपट्टा इज मेड अप ऑफ कॉटन. सो ये कॉटन से कपड़े बनाने का आइडिया कैसे आया? ओके सो ऐसे ही बहुत सारी गेम्स हैं, जैसे मतलब जो कोई भी आइडिया है दैट केम फ्रॉम समवेयर. सो वन ऑफ देम इज दिस स्पोर्ट्स. So there are various sports that are being played all around the world, and in this chapter we are going to discuss about the various sports that are being played all around the world. Okay. So let's start with the first one, that is rugby. The first picture. So in the base देखिए आपके पास यहाँ पे जो pictures हैं, the pictures of the various sports is given and the name of various countries is given in the between, and you have to match the correct answer with the correct sports कि कौन सी country से कौन सा sports है जो origin हुआ है. So the first one is the rugby. तो rugby game क्या होती है? Okay, that is not commonly played in India. ये इंडिया में commonly नहीं खेली जाती. So where this rugby is originated? So this rugby is the origin of England. England की origin है rugby. So what is rugby? Rugby is a game जिसमें क्या होता है? They are having a ball. इनके पास एक ball होती है and they have to carry it and run. तो ये जो दो टीम्स होते हैं, 2 teams in a rugby. तो एक रग्बी जो गेम होती है उसमें 2 teams होती हैं and they are having a one ball. एक बॉल होती है तो उसको उनको क्या करना होता है, उस बॉल को अपने हाथ में लेके भागना होता है. तो जैसे जस्ट लाइक फुटबॉल की दोनों की गोल्स होते हैं. ओके दोनों साइड में मतलब हर टीम के साइड पे एक गोल होता है और एक टीम को दूसरी टीम के ऑपोजिट गोल में गोल करना होता है, जस्ट लाइक द फुटबॉल. ओके फुटबॉल या हॉकी में जैसे होता है. बट इसमें क्या जो इसमें स्पोर्ट्स का जो यूज होता है दैट इज फुटबॉल. ओके तो फुटबॉल इज इट इज एक बॉल होती है. रग्बी इट इज एन ओवल शेप. ओके रग्बी एक रग्बी बॉल होती है दैट इज एन ओवल शेप की होती है एंड द प्लेयर हैव टू कैरी दैट दैट बॉल इन देयर हैंड और उसके बाद उसको पकड़ के उसको भागना होता है.
ओके। अब विद इन बिटवीन मतलब भागना होता है, रास्ते में वो अपने अपने जो उनके साथ के प्लेयर्स होते हैं, जो उनके जो साथ में स्पोर्ट्स में जो प्लेयर्स होते हैं, वो अपने साथ वाले अपनी टीम का जो उसका प्लेयर होता है वो उनको पास ऑन करते हुए भागते हैं, साथ साथ वो भागते भी रहते हैं, वो बॉल भी पास ऑन करते हैं। ओके, ताकि जो अगर कोई सपोज कोई आ जाता है उनको पकड़ने के लिए, ओके सपोज ओके यू आर रनिंग विद दैट बॉल एंड आगे से कोई आया जो आपको रोकने के लिए ऑपोजिट टीम का, तो आपने फटाफट बॉल अपने किसी दूसरे प्लेयर को पास ऑन कर दी, देन ही स्टार्ट्स रनिंग विद द बॉल। ओके, फिर सब उसके पीछे भागेंगे, देन अगेन आप आगे जाके उसके बॉल पकड़ के देन इस तरह से गेम खेली जाती है। ओके, एंड द टीम जो कि बॉल को सीधा दूसरी टीम के गोल में फेंक देती है या रख देती है, ओके दैट टीम गॉट द पॉइंट, उस टीम को पॉइंट मिल जाता है। क्लियर? सो दिस इज हाउ अ रग्बी इज प्लेड। ओके, सो इट इज प्लेड बिटवीन द टू टीम्स। ओके, टू टीम्स के बीच में खेली जाती है। ओके, एंड इट इज प्लेड विद अ बॉल दैट इज इन ओवल शेप एंड द प्लेयर हैव टू मेक द गोल इन द रग्बी पोल। ओके, उसमें जो रग्बी का जो गोल होता है वहां पे जाके उस बॉल को फेंकना होता है या वहां पे रखना होता है। सो वेयर एवर द पोल इज। ओके, एंड दैट इज नॉट अ कॉमन गेम दैट इज प्लेड इन इंडिया। ओके, दिस गेम वॉज द ओरिजिन ऑफ द इंग्लैंड ओनली। तो ये इंग्लैंड का ओरिजिन है। ओके, सो रग्बी वॉज ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड। Okay, so rugby was originated in England. That is rugby, R-U-G-B-Y. Rugby was originated in England. E-N-G-L-A-N-D. So rugby was originated in England. Okay, तो रग्बी का ओरिजिन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। नेक्स्ट दैट इज पोलो। वेयर इज द पोलो गेम ओरिजिनेटेड? तो ओरिजिन ऑफ पोलो गेम वॉज फ्रॉम द कंट्री ईरान। ईरान जो कंट्री है, ओके दैट इज एन अरेबियन कंट्री आई थिंक। ओके, सो ये मुस्लिम कंट्री है, सॉरी अरेबियन कंट्री है। ओके, सो ईरान क्या है? ईरान एक कंट्री का नाम है, आपने सुना होगा आई थिंक। तो दिस पोलो गेम इज द ओरिजिन फ्रॉम द ईरान ओनली। तो वो पोलो जो गेम है वो ईरान कंट्री का ओरिजिन है। सो व्हाट इज प्ले, मतलब ये खेली कैसे जाती है? इन दिस ऑल्सो देयर आर टू टीम्स आर देयर। ओके, इसमें भी टू टीम्स होती है एंड दे हैव टू सिट एंड व्हाइल प्लेइंग द पोलो दे हैव टू सिट ऑन अ हॉर्स। तो जब पोलो खेली जाती है तो उस टाइम पे जो प्लेयर्स हैं वो घोड़े पे होते हैं, दे वर सिटिंग ऑन अ हॉर्स। तो वे घोड़े पे बैठे होते हैं। ओके, एंड दे हैव अ स्टिक, जस्ट लाइक अ हॉकी स्टिक। जैसे कि हॉकी स्टिक होती है तो वैसी ही एक स्टिक उनके हाथ में होती है। ओके, सो फ्रॉम द वन हैंड दे वर होल्डिंग देयर हॉर्सेस एंड फ्रॉम द सेकेंड हैंड दे आर होल्डिंग द स्टिक्स। ओके, एंड द बॉल इज देयर, व्हाइट बॉल इज देयर एंड दे हैव टू किक दैट बॉल विद देयर स्टिक टू द पोल। तो पोल में उस बॉल को किक करना होता है एंड while riding the horse. So this is just this polo game is a mixture of hockey and horse riding. तो horse riding करते हुए they have to play the hockey. Okay, so इस गेम को क्या बोलते हैं? पोलो. So this is known as polo. Okay, so they जो players होते हैं उनको घोड़े की सवारी करते हुए they were sitting on a horse and they are having a stick like hockey stick in their hands and they have to hit the ball. They have to hit the ball with the, उनको उस बॉल को हिट करना होता है विद दैट स्टिक। ओके, और जब वो जिसकी बॉल पोल के अंदर चली जाती है, जो उनका गोल होता है उसमें जाती है, दैट जिसके नंबर ऑफ गोल्स ऑफ द जिस टीम के नंबर ऑफ गोल्स ज्यादा होते हैं एंड दैट टीम विंस द मैच। ओके, सो दिस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया दैट दिस गेम इज अ मिक्सचर ऑफ हॉर्स राइडिंग एंड हॉकी। तो ये हॉकी और हॉर्स राइडिंग का मिक्सचर है और इसमें जो प्लेयर्स होते हैं इनको इनके जो हैट्स वगैरह भी पहनते हैं, सो ताकि उनका जो किसी भी तरह की दे जस्ट फॉल फ्रॉम द हॉर्स, सो दे डोंट गेट हर्ट। सो दे हैव टू वियर द वेरियस, उनको अपने बॉडी में बहुत सारे पहननी पड़ती हैं ताकि अगर वो गिर भी जाएं तो उनको चोट ना लगे। ओके, सो दिस पोलो गेम इज द ओरिजिन ऑफ ईरान। सेकेंड इज पोलो, द सेकेंड गेम इज पोलो। So polo is the origin of Iran. I-R-A-N. Polo is the origin of Iran. Okay. Third one. The third game is the baseball. Okay.
थर्ड गेम इज द बेसबॉल। ये तो बेटा मुझे आज तक कुछ समझ में नहीं आई, बट आई हैव सीन इन मैंने मोस्टली कार्टून्स में और जो जो हॉलीवुड मूवीज होते हैं उसमें ज़्यादा गेम देखा है। दिस इज अ बेसबॉल गेम। ओके, सो द बेसबॉल इज द ओरिजिन ऑफ यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, सो जो बेसबॉल जो गेम है ये कहाँ का ओरिजिन है? इट इज ओरिजिनेटेड इन द कंट्री यूएसए, दैट इज अमेरिका, सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये अमेरिका की ओरिजिन है दिस बेसबॉल गेम। एंड हाउ इट इज बीइंग प्लेड, सो इसमें जस्ट लाइक अ क्रिकेट दे हैव अ बेसबॉल बैट। तो क्रिकेट में तो बैट जो चौड़ा होता है, बट इनका जो बैट होता है काफी, इट इज लाइक अ स्टिक दैट इज, मतलब जो शुरुआत में थोड़ी मोटा होता है, धीरे धीरे लास्ट में आते थे वो छोटा सा एक पतला होता है। एंड दे हैव टू होल्ड दैट बैट एंड द प्लेयर फ्रॉम द अदर साइड ही जस्ट हिट्स, ही जस्ट, जैसे कि बॉल क्रिकेट में बॉल फेंकते हैं वैसे वो फेंकते हैं। एंड द प्लेयर हु इज होल्डिंग दैट बैट, होल्डिंग दैट बेसबॉल स्टिक, वो उस बेसबॉल बैट से या बेसबॉल स्टिक से उस बॉल को हिट करता है। एंड उधर से आई थिंक एक स्क्वायर सा बना होता है एंड द अनदर प्लेयर्स दे हैव टू मेक अ, वो भागते हुए एक सर्कल कंप्लीट करते हैं। दिस इज हाउ दिस गेम इज बीइंग प्लेड। आई डोंट नो मतलब एग्जैक्टली, तो मैंने देखिए मैंने मूवीज में देखा है, टीवी में देखा है। Okay, so that's what I'm telling you here. But what is how it is actually played? So most of you must be knowing it कि आपने शायद किसी ने खेली भी होगी ये बेसबॉल। Okay, so this is the game that is being played. Okay, so that baseball is the origin of USA. तो ये बेसबॉल का origin कौन सी कंट्री में हुआ था? So baseball was originated in USA. Third is the third one, that is baseball. So baseball was originated in USA. Baseball was originated in USA. Okay. Fourth one. Fourth game is sumo wrestling. Sumo wrestling आपने सुनी होगी. So sumo wrestling. Okay, so sumo wrestling is the origin of Japan. ओके, जो सुमो है वो कहाँ का ओरिजिन है? सुमो रेसलिंग इज द ओरिजिन ऑफ जापान। तो इसमें क्या होते हैं, तो सुमो पहलवान होते हैं, जो सुमो होते हैं, सुमो पहलवान जो होते हैं ये खेलते हैं। ओके, सो दिस इज जस्ट काइंड ऑफ रेसलिंग एंड दैट इज प्लेड बिटवीन द टू सुमो रेसलर्स। सुमो रेसलर्स होते हैं, ओके, दे हैव हैविंग अ वेरी हैवी बॉडी, इनकी जो बॉडी है काफ़ी हैवी होती है। ओके, सो दे आर, मतलब आपने देखा हो जो, ठीक है, फिर बहुत ही मतलब काफ़ी ये हेल्दी होती है इनकी बॉडी। एंड दे जस्ट, क्योंकि इनकी बॉडी काफ़ी हैवी होती है तो नो वन इज एबल टू, मतलब इनको नीचे गिराना बहुत ही, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी होती है, सो नो बडी कैन हिट देम और नो बडी कैन पुल देम डाउन। ओके, तो इसमें क्या होता है दैट दे हैव टू पुल ईच अदर डाउन, उनको दोनों एक दूसरे को नीचे गिराना होता है। एंड व्हेन वन ऑफ देम जस्ट फेल डाउन, ओके, ऑन दैट वेयर दे हैव बीन प्लेइंग दैट रेसलिंग मैच, सो जो गिर जाता है दैट पर्सन लूजेज द मैच इन अनदर सुमो रेसलर, दैट अनदर सुमो रेसलर ही विन्स द मैच। ओके, सो दिस सुमो रेसलिंग इज द ओरिजिन ऑफ जापान। ओके, आपने देखा होगा जो मोस्टली जो सुमो पहलवान होते हैं जापानीज से होते हैं। सो दिस सुमो रेसलिंग इज द ओरिजिन ऑफ जापान। ओके, सुमो रेसलिंग, sumo wrestling is the origin of Japan. Japan, Japan. Sumo wrestling is the origin of Japan, or Japan, you can say that one also. Okay, now moving next, the next one is ice hockey. So the next game जिसकी हम बात कर रहे हैं that is ice hockey. So how ice hockey is being played? So in this ice hockey, okay, this is a mix, मतलब this is just like hockey but it is played on ice. Okay, ice के ऊपर खेली जाती है, बर्फ के ऊपर खेली जाती है. Okay, so just a second, I just remove. Okay, you can just write the answers from 1 to 4 here. The first one is the rugby, that it is originated from the England. Second is polo. Polo is the origin of Iran. Third one is baseball. Baseball is the origin of USA. Fourth, sumo wrestling. Sumo wrestling is the origin of Japan. Okay. Next is
The fifth one that we were talking about, that is ice hockey. So ice hockey is just like a hockey. ये hockey की ही तरह खेली जाती है with the help of hockey stick and a ball, and in the both the teams there are 11 players and they have to goal in the goal of the opposite team, just like a normal hockey जैसी होती है बेटा, उसी की तरह होती है. But the difference is that जो नॉर्मल हॉकी होती है दैट इज प्लेड ऑन अ ग्रास ग्राउंड, उसको ग्रास के ग्राउंड के ऊपर खेली जाती है. बट दिस आइस हॉकी इज प्लेड ऑन अ आइस ग्राउंड. आइस ग्राउंड मीन्स मतलब एक ग्राउंड होता है, ओके, जस्ट लाइक मतलब स्टेडियम जैसे कि हॉकी का जो एक ग्राउंड होता है. सो दिस इज जस्ट अ ग्राउंड लाइक अ हॉकी गेम जैसे नॉर्मल हॉकी के होता है, बट दैट इज मेड अप ऑफ आइस. जो इसकी लेयर्स होती है, जो इसकी जमीन होती है नीचे, दैट इज आइस, जिसपे कि स्केटिंग वगैरह भी करते हैं, आइस स्केटिंग वगैरह जो होती है. ओके, सो दिस इज आइस ग्राउंड इज देयर, और ग्राउंड इज देयर दैट इज मेड अप ऑफ आइस. तो उसके ऊपर स्केट्स पहनते हुए, okay, so while wearing the skates with while doing the skating they have to play hockey with the hockey stick. So again this ice hockey is the combination of skating and hockey. तो skating और hockey को अगर हम मिला दें so that will become ice hockey. तो skate करते करते they have to play the hockey and it is known as ice hockey. Okay, तो skating करेंगे, they have to wear the skates also, they have to hold their hockey sticks and they have to hit the ball with that hockey stick as well. So this is how that this match is being played. Okay, so the ice hockey is the origin of Canada. Ice hockey is the origin of Canada, और Canada है, बहुत ठंड होती है वहाँ पे. Okay, so ice hockey is the origin of Canada. That is the fifth one. Okay, that is ice hockey. So ice hockey is the origin of Canada. Ice hockey is the origin of Canada. Okay, I'll just write it clearly. That is the fifth one, that is ice hockey. Okay, next golf. So the next game that जिसकी हम बात कर रहे हैं that is golf. क्या है वो? golf. golf बेटा आपने देखी होगी in the you must have seen, you must have played also. So golf में क्या होता है? There is a big ground in the golf. तो golf में एक बहुत बड़ा ground होता है. Okay, that is also played with a stick. golf की stick and a ball. ठीक है, the ball is very heavy actually. छोटी होती है but that is very heavy. तो golf की stick देखिए, most of the games that they are being played with the stick, but the shape of stick of every game, मतलब mostly जो games है उनकी जो stick की shape होती है that is very different from the one another. जैसे baseball stick होती है उसकी अलग है, ठीक है, hockey stick अलग है, ice hockey की थोड़ी सी अलग है, golf की भी थोड़ी सी अलग है. So the shapes of the various sticks that is being used in different sports is different from each other, but they all are known as the stick only. Okay, so now we were talking about the golf. So golf is played in a very big ground. तो एक बहुत बड़े ग्राउंड में गोल्फ की जो गेम खेली जाती है, okay, that is a okay. तो उसमें क्या होता है, there are the certain holes that are being made, जो बहुत सारे जो होल्स बने होते हैं on the golf ground, and the person who is playing the golf, they have to hit the ball, the golf ball, छोटी सी white कलर की बॉल होती है and that is very heavy. So they have to hit the ball with the golf stick and उसको एक्चुअली golf stick नहीं बोला जाता, I think that is club, that is known as शायद club, that is known as club. तो उसकी जब stick से उसको हिट करते हैं तो जो बॉल है वो जब उड़ती हुई जाती है कहीं, तो उनको their aim is to, मतलब जो बॉल होती है their aim is to, मतलब टू पुट दैट बॉल नियरेस्ट, चाहे तो वो उस होल के अंदर उसको डाल सके और या तो उस होल के जितनी पास वो बॉल को ला सकते हैं. ओके, दे जस्ट ट्राई देयर व्हाइल प्लेइंग दिस गोल्फ. तो गोल्फ को खेलते वक्त वो जिस होल के पास जहाँ पे छेद, जो भी छेद होता है वहाँ पे, तो उनको वहाँ तक वो बॉल को नियरेस्ट और उसके अंदर डालना होता है. ओके, सो द पर्सन जिसकी नियरेस्ट होती है, जो उसके अंदर बॉल को डाल देता है, गोल्फ की बॉल को व्हाइल हिटिंग, सो दैट पर्सन बिकम द विनर. Okay, so this golf is being played in a very big playground, okay, grass ground, although with the help of the club and the ball. Okay, so
So from which country this golf is being originated? So this golf game is the origin of Scotland. तो golf का origin कौन सी country में हुआ था? That is of Scotland. So the golf game was originated from the country Scotland. Okay, तो Scotland में इसका origin हुआ था. Golf, GOLF. So golf is the origin of Scotland. Okay. So golf is the origin of Scotland. Okay, I'll just write it again. GOLF. So golf is the origin of Scotland. Next, that is chess. Chess, I think आप में से बहुत बच्चों ने खेली होगी और most of you must be loving it. Okay, so chess game क्या होती है बेटा? इसमें that is played on a check board. तो एक चेक बोर्ड होता है. Okay, that is in black and white color. Black and white और black और cream color में होता है. So that is played on a check board. Okay, so there are two players. Only two players can play a chess game. तो you require two players to play a chess game. तो chess game खेलने के लिए आपको दो players चाहिए होते हैं. Okay, one and so there is playing between the two players and they मतलब एक को so there are two जो players होते हैं इनके पास दो तरह की वो होती हैं मतलब जो उसमें आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड जो चेस के जो कहते हैं प्यादे होते हैं क्या बोलते हैं मतलब जिसमें जैसे वो हाथी वगैरह जो सब होते हैं. ओके, तो वो सारी जो उनकी होते हैं. ओके, सो ये दो प्लेयर्स होते हैं आपस में खींचते हैं एंड द मोटिव ऑफ द मतलब दोनों जो प्लेयर्स होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है दैट दे हैव टू किल द किंग ऑफ द अदर मतलब जो सामने वाली टीम जो ऑपोजिट मेंबर जो उनका बैठा है उनका जो उसका जो किंग है उसकी गेम में जो किंग है दे हैव टू किल देम. उसको सबसे पहले उसको मारना होगा एंड देन ही विल द पर्सन हु किल द किंग ऑफ द अनदर मेंबर ऑफ द अनदर टीम. ओके, जो दूसरी टीम के जो प्लेयर है उसका जो किंग जो सबसे पहले मार देगा तो दैट पर्सन इज द विनर. ओके, सो दिस इज प्लेड ऑन चेक बोर्ड. ओके, 16 प्लेयर्स आर इन देयर आर 16 प्लेयर्स. ओके, हर दोनों के पास 16 प्लेयर्स होंगे जिसमें कुछ सो देयर इज हॉर्स इज देयर. ओके, एलिफेंट इज देयर. ओके, एंड वजीर जिसको हम बोलते हैं वजीर. ओके, एंड देयर इज हॉर्स एंड आई थिंक क्वीन इज ऑल्सो देयर. सो सोल्जर्स आर ऑल्सो देयर. सो देयर बहुत सारे 16 प्लेयर्स होते हैं. ओके, सो दिस इज बीइंग प्लेड बिटवीन द टू प्लेयर्स. सो फॉर प्लेइंग अ चेस यू नीड ओनली 2 प्लेयर्स. तो अगर आपके घर में आप और आपके भैया या दीदी हैं या कोई भी है सो यू कैन इजिली प्ले द चेस गेम. ओके, सो इट इज जस्ट अ माइंड गेम. इट नीड्स अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेइंग अ गेम. यू कांट प्ले द अदर गेम्स जो है बाकी गेम्स आप खेल सकते हैं फॉर बट प्लेइंग अ चेस गेम यू नीड टू बी वेरी एक्टिव एंड मतलब आपकी जो विजन है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि मतलब अगर इफ यू मेक सम मतलब कोई अगर आप कोई बाजी चल रहे हो सो दैट अदर मतलब आपको ये ध्यान मतलब ड्यूरिंग प्लेइंग दैट द चेस गेम आपको बात क्या ध्यान रखनी है दैट आपको अपने किंग को बचाना है एंड द दूसरी के प्लेयर का जो किंग है उसकी जो उसमें जो 16 उसके मेंबर्स होते हैं उसमें उनका जो किंग है उसको मारना है. ओके, सो जो दिस इज बीइंग प्लेड. ओके, सो वन ऑफ द Abhinav Bindra is also a shooter. So I'm not getting the name of the best, one of the most मतलब हमारी जो इंडिया जो हमारी कंट्री है इंडिया के सबसे अच्छे जो हमारे चेस प्लेयर हैं वन ऑफ द बेस्ट चेस प्लेयर ऑफ अवर कंट्री. आई एम नॉट गेटिंग हिज नेम. ओके, सो आई जस्ट टेल यू व्हेनेवर आई गेट इट. ओके, सो ही इज जस्ट प्लेड. ओके, फॉर प्लेइंग जस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दैट फॉर प्लेइंग अ चेस गेम यू नीड टू बी very vigilant, you need to be very active, you need to be very accurate that whatever the step you are taking while playing that chess game तो उस स्टेप से आपका जो किंग है वो नहीं मरना चाहिए. ओके, सो द अदर जो बाकी जो 15 प्लेयर्स होते हैं आप जो टीम में वो आप यूज करते हो फॉर सेविंग योर किंग. अपने किंग को बचाने के लिए अपने राजा को बचाने के लिए. सो दे जस्ट यूज ऑल द प्लेयर्स दैट
ऑल द जो जितने भी बाकी जो प्लेयर्स होते हैं उस गेम में, उसको यूज करते हुए आपको अपने किंग को सेव करना है और ऑपोजिट टीम के किंग को मारना है. सो दिस इज द मेन मोटो ऑफ दिस गेम. Okay, so that's okay. From which country this chess game is originated? So this chess game is the origin of our own country, India. हमारी खुद की country India. Okay, so हमारी country ने this is the game that is being origin of our own country, India. So that is the sixth one. Sorry, the seventh one, that is chess. So chess is the origin of chess is the origin of India, our own country, India. हमारी country India का origin है, that is chess. Okay. So chess is the origin of India only. Okay. Next is the last one, that is lawn tennis. Okay, so lawn tennis is a play game. Okay, so there are two types of tennis, beta. Okay, one is table tennis that is being played on a table. So table tennis में भी 2 players होते हैं. Okay, 2 या 4 players होते हैं. So in the table tennis is played on a table. In that you are having a very small table. जो table tennis की छोटी सी आप कह सकते हैं उसको, जो छोटा सा एक रैकेट होता है. ओके, दैट इज मेड ऑफ वुड. तो उसकी छोटी सी बॉल को आपको हिट करना होता है ताकि वो ऑपोजिट साइड जो मेंबर हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनकी जो साइड पे गिरे. तो आपको जो उस बॉल को अपनी साइड पे गिरने से रोकना होता है. अगर आपकी बॉल जो आपके साइड वो आ रही है, दैट दे वर हिटिंग विद दैट वुडन बैट, जो अपने वुडन छोटे सा बैट सा होता है, उससे अगर हिट कर रहे हैं, तो अगर आपकी साइड में बॉल गिरती है तो अदर टीम विल गेट द स्कोर. ओके, सो जैसे दिस इज जस्ट लाइक दिस इज अ टेबल टेनिस. सो देयर इज अनदर गेम दैट इज लॉन टेनिस. So lawn tennis, the name it signifies that where it is being played. So lawn tennis is being played in a lawn. तो एक lawn that is made up of grass. तो grass का एक ground होता है जहाँ पे lawn tennis की game खेली जाती है. Okay, so lawn tennis is being played in a grass ground. Okay, and again in this 2 or 4 players can play. एक टीम में 1 या 2 प्लेयर है जो इस मैच को खेलते हैं. ओके, दैट इज अ वेरी जेंटलमैन गेम और जेंटल वुमेन गेम. सो मोस्ट ऑफ देम आर द वुमेन्स ओनली, दोज हु प्लेज लॉन टेनिस. ओके, सो इसमें क्या होता है, इसमें एक लॉन टेनिस का कोर्ट होता है. दिस इज अ स्मॉल कोर्ट ऑफ द लॉन टेनिस एंड दे आर द प्लेयर्स, दे आर होल्डिंग अ racket. So they are holding a racket in their hands and they have to hit a ball. So there is a net between. तो जो कोर्ट होता है लॉन टेनिस को, उसके बीच में एक नेट लगा होता है. एंड द one players will be on the one side and another player with the other side of the or that net. एक प्लेयर नेट की दूसरी साइड होगा और एक उसके दूसरी ऑपोजिट साइड. सो बोथ द प्लेयर्स दे आर ऑन द अनदर साइड ऑफ द नेट. तो एक नेट के एक साइड एक मेंबर होगा, दूसरी साइड दूसरे. Sometimes the 2 members from the each team also play. एक साइड भी 2 हो, दूसरी साइड भी 2 हो. Okay, so that is played with the racket. So the player have to hit that ball with the racket. तो उनको एक रैकेट से उस बॉल को हिट करना होता है. एंड while playing this game, तो उनको करना क्या होता है, they have to keep in mind ताकि जो वो बॉल है वो ऑपोजिट टीम के जो प्लेयर है उसको हिट ना कर पाए. समटाइम्स दे यूज द वेरियस स्ट्रेटेजीज. कभी वो धीरे से करते हैं ताकि वो प्लेयर भाग के जब तक आगे आएगा तो बॉल तब तक नीचे गिर जाएगी. ओके, so various strategies they just use while playing the this lawn tennis. Okay, so जिस player के side वो बॉल गिर जाती है और which player is not able to hit the ball that has been hit by the another player from the other side, so the another player will get the score for it. Suppose someone is hitting from the opposite side from me, कोई मेरे opposite से hit कर रहा है और मैं उसको hit नहीं कर पाई और वो बॉल नहीं hit हो पाई, मुझसे छूट गई. So opposite team का जो player है he will get a score for this. Okay, so this is being played in a lawn, so that's why it is known as the lawn tennis. And the tennis that is being played on a table, that is known as table tennis. The table tennis and the lawn tennis, they are both very different. Lawn है tennis है जो open area में खेला जाता है. Okay, but that table tennis is placed in a closed room. Okay, I think ये एक outdoor game नहीं है. Table tennis is an indoor game and lawn tennis is an outdoor game. Okay, so the one of the very famous lawn tennis player of India is she is Sania Mirza. Sania Mirza is one of the important player from our own country. Leander Paes. Okay, so these are the ये हमारे जो
प्लेयर्स हैं जो कि हमारे इंडिया के, जो कि लॉन टेनिस खेलते हैं इंटरनेशनली. दे रिप्रेजेंट अवर कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल इन द लॉन टेनिस. Okay, so from which country this lawn tennis has been originated? So this lawn tennis has the origin of France. Okay, lawn tennis कहाँ का origin है? That is the origin of France. That is the 8th one. Okay, so 8th is the lawn tennis. Lawn tennis. So lawn tennis is the origin of France. F-R-A-N-C-E. F-R-A-N-C-E. So lawn tennis is the origin of France. तो ये फ्रांस कंट्री का origin है. This lawn tennis originated from France only. Okay, so these are the games and these are the countries from which they have been originated. Iceland, ice hockey from Canada, golf from Scotland, chess from our own country India, and the last is the lawn tennis, and the lawn tennis is the origin of France. Okay, so with this I'm just ending the session here only, class, because we have completed this chapter, and in our next session we are going to start with the further chapters. Okay, so with this I'm just ending the session here only. So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody have a good day.